Good morning, students. Now we are here to shoot the video for integration, and this is the last portion. This will be the last video of the initial portion of 11th. And we had already done integration up to part 3rd, and we had also seen the basics of all types of integration. मैंने फॉर्मूलाज आपको लिखा दिया है, कई सारे क्वेश्चंस भी कर लिए हैं. अब जो है हम लोग फाइनल टचेस को देते हैं. कुछ और टाइप्स के सवाल हैं जो आपको आने चाहिए, ठीक है, वो हम लोग करते हैं. उसके बाद हम इस पोर्शन का एंड करेंगे, ठीक है. देन आफ्टर यू आर रेडी टू डू द काइनेमेटिक्स पोर्शन. नाउ स्टूडेंट्स, okay, so now see, so sometime you'll get a problem like this in integration question. You'll get a function like, suppose here it is fx, okay, some function, and here it is some f dash x present over there, means इसका डिफरेंशिएशन यहाँ मौजूद है. अगर ऐसा है तो हम आराम से इंटीग्रेशन कर सकते हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल if y is equal to x cube upon root under x to the power 4 plus 1, ठीक है. तो दिस इज एक्चुअली, ये प्रॉब्लम किस टाइप का हुआ कि इसके अंदर में fx है, ठीक है. अगर नीचे में किसी भी तरह का fx है, जैसे रूट अंडर fx हुआ, fx ln fx हुआ, किसी तरह का fx प्रेजेंट है इसके साथ में, तो जैसे ऐसा समझिए, ये इसको हम यहाँ fx मानेंगे, तो अगर हम इसको देखें डिफरेंशिएट करके, हाँ एक्स क्यूब आ जाएगा, वो कट जाने वाला है. अगर इस टाइप का इंटीग्रेशन आया तो हम कर सकते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बता दूं, सपोज करिए लेट x टू द पावर 4 प्लस 1 इज इक्वल टू t, देन व्हाट इज dt ओवर dx? इट इज 4x क्यूब, ओके, एंड प्लस 1 इज कैंसल्ड बिकॉज इट इज अ कांस्टेंट, डिफरेंशिएशन इज 0. देन यू विल सी स्टूडेंट dx वुड बी नथिंग बट dt अपॉन 4x क्यूब. Okay, just put the value if you want to integrate it. Suppose if we want integration of this function, so it is like this, integral y dx, and suppose we are not doing within the limit, it is indefinite, okay, suppose like this, then it is like this, y is equal to x cube upon root under x to the power 4 plus 1 dx. Okay student, now you have to put the value what you had assumed in this question. Like this, you had assumed t, then it is root under t, and it is present over x cube. And now what you should put for the dx you will do dt upon 4x cube. Now you should put the value here, dt upon 4x cube, and now you can see, dear student, this is getting cancelled, okay, and now your integration becomes simple. I is equal to, it is 1 by 4 and it is dt over root under t. Now it is very simple. Now you can do this. कैसे किया जाए इसको? तो दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखें तो i is equal to 1 by 4, and if you integrate it, it is nothing but t to the power minus 1 by 2. आप इसको ऑब्जर्व करें, ये आपको ऐसा है. फिर आगे x to the power n के टर्म्स में, है ना, उसका इंटीग्रेशन हमको पता है कि i is equal to 1 by 4, here it is t, x की जगह पे t है, कोई बात नहीं, t minus 1 by 2 plus 1 upon minus 1 by 2 plus 1. Okay, and plus constant, because it is indefinite integral, that is why here it is constant. And now it is 1 by 4 into, it is 1 by 2, तो it is 1 by 2, और यहाँ पे आ गया आपको t to the power 1 by 2 plus constant. Now simplify it, just it is I is equal to 1 by 2 and t root under t plus c. So this is basically the integration of this portion. ठीक है, this type of problem you have to identify in the problem कि क्या इसका डिफरेंशिएशन ऊपर मौजूद है या नहीं है ना. तो इस तरह के प्रॉब्लम को हम ऐसे सॉल्व करते हैं, सब्स्टिट्यूट करके, ठीक है. यू कैन नोट इट डाउन. आई विल डू मोर एग्जांपल्स ऑन इट. फर्स्ट यू डू दिस. Okay, so now let us suppose some more problem. Let us take some more problem.
ये अभी आपको थोड़ा प्रॉब्लम आएगा, बट जब आप प्रैक्टिस में आ जाओगे तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला. सपोज एग्जाम्पल नंबर 2. सपोज इफ देर इज अ क्वेश्चन गिवन लाइक दिस, suppose it is given like 2x square plus 3. Here it is given like this, okay, and here it is suppose it is 2, sorry, suppose it is given 3x square, okay, then it is given x cube plus 3x, x cube plus 3x and plus 4. Suppose this type of function is given to you and now you have to integrate it. ठीक है, तो इधर से देख के ही आपको समझ में आ रहा है कि इसका डिफरेंशिएशन ऊपर मौजूद है ना. तो लेट अस सब्स्टिट्यूट इट. लेट t इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 3x प्लस 4. देन यू कैन सी स्टूडेंट dt ओवर dx इज नथिंग बट 3x स्क्वायर प्लस 3 एंड कांस्टेंट डिफरेंशिएशन इज 0. सो हियर यू कैन राइट dx इज इक्वल टू dt ओवर 3x स्क्वायर प्लस 3. Okay, now you have to just put all the values. So you should do this. I is equal to, means here it is I, here it is I, sorry. So now this is integral function. You can see you have to put t, and at the place of dx you have to put dt over, sorry, here you have to also put 3x square plus 3, and here it is 3x square plus 3, and it is getting cancelled. You can see, and now the integration becomes so simple. That is dt over t. So it is nothing but ln t plus c. So this type of question you can solve by just seeing the question. दोस्तों याद रखिए, जैसे डिफरेंशिएशन में चेन रूल होता है, इंटीग्रेशन में चेन रूल नहीं चलता है. ठीक है, इसमें हर प्रॉब्लम स्पेसिफिक होगा और आपको पहचान के आपको करना पड़ेगा सारे क्वेश्चंस को. ठीक है, तो इसलिए आपका ध्यान होना चाहिए प्रॉब्लम्स पे. प्रॉब्लम किस टाइप का है, कौन सा फॉर्मूला लगने वाला है, ये आपको पता चलने वाला है. ठीक है. So several problems can be drawn like this. Several problems, so many problems can be done like this. Okay, so now this is a one type of problem. This you will get in our sheet which I had provided you already. Okay, so this type of problem is available there. Suppose one problem is like this. Suppose one problem is like this. You have to integrate. You have to integrate, my dear friend, cos x over root under 1 plus sin x dx. Now मुझे देख के पता चल रहा है कि यहाँ पे इसका डिफरेंशिएशन यहाँ मौजूद है, and now you have to integrate it in between 0 to pi by 2. ओके, चलिए मैं आपको इसके पावर्स को भी मैनिपुलेट करना हम लोग थोड़ा थोड़ा सीखते हैं यहाँ पे. देखिए, सपोज लेट t is equal to 1 plus sin x. 1 plus sin x. Now if you differentiate it with respect to x, you will get 1 का तो cancel हो जाएगा and it will become cos x. Now here you can write dx is equal to dt over cos x. dt over cos x. Okay? अच्छा, अब यहाँ अब देखिए, यहाँ पे वेरिएबल क्या था x, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन का लिमिट क्या था 0 से लेकर पाई बाई 2. लेकिन अब जो है लिमिट बदलने वाला है, वहाँ t आने वाला है. तो you have to write the limit in terms of t. See what I want to say. That is, if you write like this 0 to pi by 2, and if you write here cos x upon root under t, if you want to write, and at the place of dx you should write dt upon cos x. Okay, here we have got, so here you can see cos x is gone. Now this limit is again not, it should not be there. Why it should not be there? Because when the variable is x, then the limit is from 0 to pi by 2. But here the variable is t. Then what should be the lower limit and upper limit? We have to manipulate it from the previous expression. And mind it is very easy. Don't bother about it. It is very hard. It is very easy. How you can do? You can see. Suppose what is the function of t? T is nothing but 1 plus cos x. 1 plus sin x. ठीक है. तो यानी कि यहाँ पे आप देखो तो t किसका फंक्शन है? x का फंक्शन है. तो नाउ यू हैव टू पुट कि अपर लिमिट पे अगर t रहे, यानी कि t में अगर हम पाई बाई 2 डालें तो क्या होगा? तो 1 प्लस साइन पाई बाई 2. साइन पाई बाई 2 इज 1 and 1 plus 1 is 2. Okay, and if you put 0 there, then it is t from 0. So if you put sin 0, it would be 0 and it is 0 plus 1, that is 1. Okay,
Now what you have to put in the lower limit and upper limit in this here in this expression. So at the place of variable of x, you have to put the corresponding value in terms of t there. Means यहाँ पे x का लोअर लिमिट है 0, तो t का लोअर लिमिट x के मिनिमम लिमिट पे कितना आया है, तो आया है 1, यू शुड पुट 1. ओके, उसी तरह मैक्सिमम लिमिट पे π/2 पे देखा गया तो आया 2. नाउ यू हैव टू इंटीग्रेट इट फ्रॉम हेयर टू हेयर. सो नाउ इफ यू सी माय डियर फ्रेंड, it would nothing but 1 to 2 and it is dt over root under t. So अगर हम इसको इंटीग्रेट करेंगे so it would be t to the power minus 1 by 2 and here it is dt from 1 to 2. Okay, now just do it. I is equal to t to the power minus 1 by 2 plus 1 upon minus 1 by 2 plus 1. Okay, and here you have it is where from 1 to 2. So here it is I. And it is if you take 1 by 2 outside to become the numerator, and it is like this. This is, I am just writing root under over t because it will come t to the power 1 by 2 and it is from 1 to 2. So answer would be 2 root under, you have to put the maximum value minus you have to put the minimum value at the place of t, and this is the answer. Okay, so its answer would be, अच्छा यहाँ पे आपको कांस्टेंट लगाने की आवश्यकता है ही नहीं क्योंकि ये डेफिनेट इंटीग्रल है. So here it is 2 root 2 minus 2. So this is the answer. Okay, so it is very easy, है ना. थोड़ा थोड़ा इसमें मैनिपुलेशन ध्यान रखने जैसी बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी चाहिए. Okay, so it is another type of problem, you can do it. चलिए एक प्रॉब्लम और बताते हैं आपको डेफिनेट इंटीग्रल पे. चलिए, दिस इज क्वेश्चन नंबर 4 एंड लेट अस डू इट फॉर सम अनदर क्वेश्चन. यही सेम काम करना है. क्वेश्चन नंबर 4, सपोज इफ यू हैव टू इंटीग्रेट दिस फ्रॉम 0 to 1 एंड इट इज x to the power 4 एंड रूट अंडर x to the power 5 plus 1 dx. ओके, नाउ यू हैव टू इंटीग्रेट. अब मुझे देख के ही पता चल रहा है कि इसका डिफरेंशिएशन यहाँ मौजूद है ना. तो आपको क्या करना है, लेट अस सपोज, आप ऐसा मत करें लेट टी ही, आप ये कर लोगे तो फंस जाओगे. आप नहीं कर सकते फिर, ठीक है ना. तो टी किसको सब्स्टिट्यूट करें, बस इसमें दिमाग लगाना है. तो जिसका डिफरेंशिएशन वहां मौजूद है उसी को टी मानेंगे, तभी फायदा है, वरना नुकसान हो जाएगा. नुकसान का सौदा नहीं करना हमको, है ना. तो टी मुझे इसे मानना है, ये है ना, ताकि हम डी टी ओवर डी एक्स करें, है ना. और ये आ जाए 5x to the power 4 and plus 0. देन x to the power 4 विल गेट कैंसल्ड, है ना. ऊपर वाला टर्म नीचे आ जाना चाहिए जिससे कि वो कट जाए, बस इतना ध्यान रखना है ना. सो इट वुड बी dx इज इक्वल टू dt ओवर 5x to the power 4. ठीक है. सो नाउ here integration is equal to, you have to see this is basically x to the power 4 upon root under t and it is dt dx की जगह पे dt over 5x to the power 4 and you can see it get cancelled easily. So I would be 1 by 5 and here it is 1 by root t dt. Now the variable is t and what should be the lower limit and upper limit? Just see from there. What is t? So t in the function of x is equal to nothing but x to the power 5 plus 1. So you have to put for the minimum lower limit 0, x की जगह पे 0 रखेंगे. It is getting 1 and 1 की जगह पे क्या पुट करेंगे, 1 का पावर 5 प्लस 1 दैट इज 2. ओके, हर समय 1 और 2 नहीं आने वाला, वो ऐसा आ रहा है इसलिए हमको लिखना पड़ेगा 1 से लेकर 2, है ना. तो इफ यू सी माय डियर फ्रेंड, जस्ट इंटीग्रेटेड, और इसका इंटीग्रेशन मैं नहीं करने वाला, आप डायरेक्ट हम लिख रहे हैं. तो अब आपको आना चाहिए इसका इंटीग्रेशन 1 by 5 इंटू 1 by 2 एंड रूट अंडर टी एंड इट इज फ्रॉम 1 to 2, है ना. सो आई वुड बी नथिंग बट 2 by 5 एंड इंटू रूट अंडर 2 माइनस रूट अंडर 1. आंसर, है ना. सो दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम यू विल गेट इन योर लाइफ और आपको सॉल्व करना है, ठीक है. आई थिंक आपको आसान लग रहा होगा या हम गलत समझ रहे होंगे.
चलिए ओके, सो इस तरह का प्रॉब्लम लाइफ में आ सकता है। चलिए और भी प्रॉब्लम करते हैं। देखिए कुछ टाइप के प्रॉब्लम और होंगे जिसमें साइन कॉस का यूज करना पड़ेगा, उसको भी देखते हैं। Okay dear student, now see another type of question, question number 1 है ना। So suppose here it is given, ये another type का प्रॉब्लम है, ठीक है। So it is given dx over रूट अंडर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसको इंटीग्रेट करना है ना। कैसे करा जाए, अब ये तो बहुत मुश्किल हो गया है ना। अब इस यहाँ x का पावर 1 रहे तब तो सॉल्व हो जाता है, लेकिन यहाँ x का पावर 2 है और ऊपर कोई डिफरेंशिएशन मौजूद भी नहीं है ना। ये तो पहले वाला क्वेश्चन है नहीं, ये अलग टाइप का क्वेश्चन है, तो इसके लिए अलग बुद्धि लगाएंगे। बुद्धि क्या लगाएंगे माय डियर फ्रेंड, आपको एक चीज पता है, क्या पता है, तो पता है कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1, कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। ये आपको पता है ना। तो आपको ऐसा लेना है, मैं बताऊं आपको, जैसे इसमें कोई एक टर्म आ जाए मुझे लेने से, जैसे मैं बताऊं आपको, समझे। जैसे फॉर दिस क्वेश्चन वी शुड टेक, जैसे अभी तो हम आपको बता रहे हैं, धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। सपोज इफ आई टेक a इज इक्वल टू साइन ए, सॉरी x is equal to a sin t. Suppose if I am taking like this, okay? तो अगर हम ऐसा लेते हैं तो क्या आ जाएगा i की जगह पे, i की जगह पे आ जाएगा dx रूट ओवर a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर साइन स्क्वायर t, है ना। तो इट इज लाइक दिस, dx इज इक्वल टू, अब a बाहर निकाल सकते हैं आप, जब a बाहर निकालोगे तो क्या बचेगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर टी, साइन स्क्वायर टी, यू कैन सी हियर 1 माइनस साइन स्क्वायर टी, ओके। हाँ चलिए बहुत अच्छा। अब हम क्या करेंगे इसको, अगर हम इसको 1 अपॉन ए बाहर निकाल ले तो इट वुड बी dx ओवर, और ये क्या आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर टी क्या होता है। अब देखिए यहाँ पे अगर देखोगे 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स। तो मैं बताता हूँ कैसे आ रहा है, सब परेशान ना हो। कॉस स्क्वायर टी यहाँ हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर टी कॉस स्क्वायर टी। अब रूट अंडर हट जाएगा ये, अगर ये रूट अंडर हटेगा माय डियर फ्रेंड तो इट वुड बी 1 अपॉन ए और ये dx इज इक्वल टू कॉस टी, ठीक है भाई, अच्छी बात है। अब भाई साहब नीचे t है ऊपर x है, तो ये थोड़ा अच्छा तो नहीं लगेगा सर। हाँ तो बात तो सही है, अच्छा तो लगेगा नहीं, तो अच्छा नहीं लगेगा उसके लिए क्या करें, तो t आपने क्या माना था, सॉरी x आपने क्या माना था, साइन टी, हाँ सॉरी ए साइन टी, है ना। तो आप क्या करो, आप इसको डिफरेंशिएट करो, dx ओवर dt इज नथिंग बट a cos t, है ना, और dx इज इक्वल टू व्हाट, a cos t dt, ठीक है। जस्ट पुट देयर, सो हियर यू विल गेट, इफ यू सिंप्लीफाई इट, 1 अपॉन a dx की जगह क्या लिखे, a cos t dt, है ना, और अपॉन cos t। सो हियर यू कैन सी माय डियर फ्रेंड इट इज गेटिंग कैंसल्ड, है ना, और a ऊपर में है तो a से a भी कट जाएगा, और i वुड बी इक्वल टू व्हाट, लाइक दिस dt, और आपको पता है इंटीग्रेशन से d कट जाता है तो बचेगा t, बचेगा क्या, t और प्लस कांस्टेंट। अब इस t को x के टर्म में कैसे लिखें, तो देखिए आप यहां से देखें, x अपॉन a इज इक्वल टू साइन t, तो t को क्या लिख सकते हैं, साइन इनवर्स x अपॉन a, तो ये आपको वहां लिखना है। सो इट इज i इज इक्वल टू साइन इनवर्स x अपॉन a प्लस c। सो दिस इज द बेसिक इंटीग्रेशन ऑफ इट, ठीक है। तो ये हुआ। अब आपके मन में सवाल होगा कि सर आपके दिमाग में जादू आ गया क्या जो आप ये मान लिए, तो आंसर है नहीं, जादू नहीं आया, मुझे प्रॉब्लम दिखा कि इसको हम ना 1 माइनस साइन स्क्वायर के टर्म्स में या कॉस स्क्वायर के टर्म्स में आ सकते हैं, जबकि यहाँ देखें इन दोनों एक्सप्रेशन में देखें, इसमें आप टेन स्क्वायर एक्स को उधर करोगे तो 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स का फॉर्म आएगा, और इसमें देखोगे तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर का फॉर्म आएगा। मुझे माइनस में चाहिए था, 1 माइनस कुछ भी चाहिए था, हम सब्स्टिट्यूट एक्स को कर सकते हैं, ए को नहीं, है ना।
तो जब x को सब्स्टिट्यूट हम करेंगे तो ऐसा टर्म आना चाहिए जो ऐसे सिंप्लीफाई होकर आना चाहिए। तो मुझे पता था कि 1 माइनस है, हाँ आप बोलोगे यहाँ कॉस माना है, कॉस मान सकते हैं। अगर आप कॉस भी मानते तो क्या आ जाता, यहाँ पे आ जाता आपको क्या, कॉस स्क्वायर टी, और सारा कुछ करोगे तो यही आएगा, आंसर में कोई फर्क नहीं आएगा, है ना। तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं है बिल्कुल भी। माइनस था बीच में इसलिए हम एक प्लस का सवाल भी लगा के दिखा देते हैं आपको। अब जैसे मान लो tan लेते हैं यहाँ पे, तो tan लेते तो क्या आता है 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स, और 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स कुछ थोड़ी ना होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स होता है, जो कि सेक स्क्वायर एक्स के बराबर होता है ना। कर लीजिए धीरे धीरे, ये सारी बातें आपको समझ में आएगी। मैं एक प्लस का भी सवाल करता हूँ, आप बिल्कुल भी परेशान ना हो। Okay, so now see, come to another problem for the same type. हालांकि इतना टफ इंटीग्रेशन आपको कभी मिलेगा नहीं। इंटीग्रेशन तो अपने आप में बहुत बड़ा चैप्टर है, बहुत बड़ा चैप्टर है, तो उतना डिफरेंशिएशन को पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है। मुझे तो बस बेसिक्स चाहिए, जैसे कि अपने फिजिक्स के सवाल बन जाए, है ना। तो आपको पूरे फिजिक्स में टफ डिफरेंशिएशन कभी नहीं आएगा, टफ इंटीग्रेशन कभी नहीं आएगा। डिफरेंशिएशन आता भी है तो चेन रूल है, उससे आप सर्वाइव कर जाओगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। नाउ टेक अ 1 प्लस क्वेश्चन। सपोज इफ क्वेश्चन नंबर 2, इफ यू हैव टू इंटीग्रेट लाइक दिस, I इज इक्वल टू dx ओवर a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ओके, a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब ऐसा आ गया, अब बीच में प्लस है, बीच में क्या है, प्लस है, तो मुझे तो सोचना पड़ेगा। तो भाई साहब अब कौन सा ले, तो मेरे पास तो था फॉर्मूला ये वाला, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1, कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। अब हम क्या करें भाई, तो करना कुछ नहीं है, आपको अब प्लस वाले के बारे में सोचना है। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बराबर सेक स्क्वायर एक्स होता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स बराबर कॉसेक स्क्वायर एक्स होता है। दोनों में से कुछ भी रख सकते हैं, है ना। तो वो हम रखेंगे I इज इक्वल, सपोज हियर यू हैव टू जस्ट थिंक, लेट, आपको ऐसा लेना है कि a भी बाहर आ जाए, तो मतलब x इज इक्वल टू a tan t, ऐसा ले सकते हैं, तो आपको बाहर आ जाएगा। देखिए दोस्तों, ये सब आपको समय के साथ आने वाला है, और यहाँ पे डिफरेंशिएट भी कर लीजिए, dx बाई dt इज इक्वल टू a सेक स्क्वायर t, ओके। सो dx इज इक्वल टू नथिंग बट a सेक स्क्वायर t dt, है ना। तो यस, नाउ स्टूडेंट जस्ट सी here now put the values, if you see it is dx over a square plus x की जगह पे a square tan square t, okay, and now in terms of dx what you have to put, dx की जगह पे क्या पुट करेंगे दोस्तों, a sec square t dt, है ना। so you'll get now it is, अब बाहर क्या आ जाएगा, तो a स्क्वायर 1 बाई ए स्क्वायर, और ऊपर में एक और a है ना, कट जाएगा वो, और here it is sec square t, और नीचे में बचेगा क्या, 1 प्लस टेन स्क्वायर टी डी टी। नाउ वट यू कैन राइट दिस, सेक स्क्वायर टी, है ना। तो यहाँ हो जाएगा, एक से काट दिए तो 1 अपॉन ए, एंड इट इज सेक स्क्वायर टी से काट दी इसको यहीं से, तो इट इज डी टी। अब फिर देखो ये से कैंसिल हो जाएगा, एंड इट 1 बाई ए इंटू टी प्लस सी। नाउ वट यू कैन राइट टी, सो टी आप यहाँ देख लीजिए, एक्स अपॉन ए इज इक्वल टू टेन टी, सो टी इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए। दिस आर बेसिकली इनवर्स फंक्शन का इंटीग्रेशन है और कुछ नहीं। तो व्हाट यू शुड राइट, 1 बाई ए टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस, दिस इज द आंसर, है ना। सो इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। सो दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम यू मे गेट। ओके, तो ये एक टाइप का इंटीग्रेशन है आपको। तो मैंने आपको दोनों प्रॉब्लम दिखाए,
ओके अच्छा, अब देखिए दोस्तों एक और सवाल करते हैं। सपोज क्वेश्चन नंबर 4, डरिएगा नहीं। क्वेश्चन नंबर 4 इट इज लाइक दिस। इस टाइप का ये पहला सवाल है, एक्स स्क्वायर रूट अंडर एक्स प्लस 1, ऐसा सवाल आ गया आपको, है ना। अब वो करना है, अब क्या करें भाई, क्या करें, इसमें तो कुछ भी नहीं लग रहा भाई। ये एक तो दो फंक्शन है, अब ये u और v पे भी नहीं बनता है। एक को u मान ले, एक को v, तो डिफरेंशिएशन में होता है, इसमें तो होता नहीं है। तो करे क्या, अब भाई इसमें कोई भी दिमाग लगा लो, अभी तक जो पढ़े उससे नहीं बना सकते। क्या करेंगे, उसमें जो आपको कॉम्प्लिकेटेड टर्म लग रहा है उसको t मान लीजिए। करना क्या मैं बताता हूँ, x प्लस 1 इज इक्वल टू टी, लेट, है ना। तो dt ओवर dx क्या हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 1। सो dt इज इक्वल टू व्हाट, dx। पहली बात तो ये है ना। तो अच्छा दूसरी, अच्छा यहां से भी क्या कर सकते हैं कि x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो t माइनस 1। सारे वैल्यूज को पुट करिए आप, सारे वैल्यूज को पुट करिए, विल गेट द आंसर। x की जगह क्या करेंगे, t माइनस 1 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे रूट अंडर t, और dx की जगह क्या लिखेंगे, dt। खत्म कहानी। अब आपका सवाल सिंपल हो गया। सर अभी भी कहाँ सिंपल है, नहीं सिंपल है, मैं बताता हूँ समझे। टी स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2t इंटू रूट टी, है ना। रूट टी का क्या मतलब होता है, t टू द पावर 1/2 dt। सबको मल्टीप्लाई करिए, देख लीजिए, t 2 प्लस 1/2 दैट इज 5/2 प्लस t टू द पावर 1/2 माइनस 2t टू द पावर 3/2। अब आप तो गया, अब तो सब आसान है ना। ये तो किया जा सकता है, t टू द पावर 5/2, वही x टू द पावर n वाला इंटीग्रेशन से इसको कर सकते, इसको कर सकते, इसको कर सकते, आराम से कर जाइए, क्या दिक्कत है ना। 3/2 है ना। अब इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं, कोई खास बात थोड़ी ना। दिस इंटीग्रेशन वुड बी t टू द पावर 5/2 प्लस 1 7/2 अपॉन 7/2 प्लस t टू द पावर 1/2 प्लस 1 3/2 अपॉन 3/2 माइनस 2 t का पावर 3/2 प्लस 1 दैट इज 5/2 अपॉन 5/2, है ना, और प्लस c। इसको आप सॉल्व कर लीजिए अपने से, वो मैं नहीं कर रहा। तो इस टाइप के प्रॉब्लम आपके आते हैं, ये होता है सिंप्लीफिकेशन प्रॉब्लम। आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। है ना। इस टाइप की एक और प्रॉब्लम देख लीजिए। दिस टर्म इज सो कॉम्प्लेक्स, नाउ यू हैव टू जस्ट व्हाट यू हैव टू डू, व्हाट यू हैव टू डू जस्ट द सिंप्लीफिकेशन प्रोसेस, है ना। सिंप्लीफाई करिए। अब जैसे यही रहता है अगर प्रॉब्लम, आप इसको एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 1 1/2 ये करके भी क्या कर लोगे आप, आपको इसका एक्सपेंशन थोड़ी ना आता है, नहीं कर सकते। हाँ लेकिन इसका एक्सपेंशन आता है मुझे, है ना। ये अंतर आ जाता है इसमें। चलिए दूसरा क्वेश्चन करते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं इसमें। जैसे सपोज करिए क्वेश्चन नंबर 2, सपोज द प्रॉब्लम इज लाइक एक्स स्क्वायर, यू हैव टू जस्ट इंटीग्रेट एक्स स्क्वायर ओवर रूट अंडर एक्स प्लस 1 dx, है ना। इस तरह का आ गया। अब इसमें भी आप कुछ खास नहीं कर सकते, क्या करोगे, नहीं इसका डिफरेंशिएशन मौजूद है ऊपर में, और नहीं ये ax प्लस बी वाला फॉर्मेट है, कर थोड़ी ना सकते इसको। मतलब ax प्लस बी वाला फॉर्मेट तो है ही, लेकिन ऊपर में ये भी तो है ना, है ना। अगर सिंपल ये रहता तो सबसे पहले वाले तरीके से हम आराम से बना लेते हैं x प्लस 1, इसमें कहाँ कोई दिक्कत था। बट ऊपर में एक्स स्क्वायर भी तो बैठा है, और वो नीचे वाले का डिफरेंशिएशन भी नहीं है, तो भाई क्या करे, है ना। तो क्या करे भाई इसमें, तो करना ही कुछ नहीं है, लेट t इज इक्वल टू, वही काम करना है x प्लस 1 एंड हेयर dt अपॉन dx इज इक्वल टू 1, सो यू कैन राइट dt इज इक्वल टू dx, ठीक है।
एंड ऑल्सो x इज इक्वल टू t माइनस वन, जस्ट पुट इट। इस टाइप के प्रॉब्लम आपके शीट में है, आप कर सकते हैं। i इज इक्वल टू t माइनस वन का होल स्क्वायर अपॉन रूट अंडर t एंड दैट इज dx, है ना। सो दिस i इज इक्वल टू व्हाट यू हैव टू राइट, t स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2t अपॉन t टू द पावर 1/2 dt। नाउ जस्ट सी, ये क्या है, t स्क्वायर अपॉन t 1/2 प्लस 1/t 1/2 और माइनस 2t अपॉन t 1/2। जस्ट सिंप्लीफाइड, अब तो आप कर ही सकते हैं, इसमें कौन सा बड़ा बात है, ये हो गया सिंप्लीफाइड फॉर्म, आप कर सकते हैं। तो इस तरह के प्रॉब्लम्स को प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चंस अवेलेबल है, आप इसको ट्राई कीजिए, ठीक है। सो दीज आर एवरी टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स जो हमने आपको डिस्कस कर लिए हैं। नॉट यू कैन से नॉट ऑल द प्रॉब्लम्स बट मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम आई हैड डन, जो कि मुझे ज़रूरत है। इतना इंटीग्रेशन आपको आना चाहिए जिसमें कि हम अपना सवाल कर सकें, है ना। तो कर लीजिए इसको। कुछ कुछ आपके फिजिकल प्रॉब्लम्स भी अवेलेबल है, मैं वो भी एक आध करा देता हूं, आप चाहे तो इसे लिख सकते हैं। ओके, चलिए कुछ आते हैं फिजिकल प्रॉब्लम्स पे। ओके, नाउ सपोज इट इज गिवन, देखिए इस सब प्रॉब्लम से आप डरे बिल्कुल भी ना, ये सब अभी नहीं पढ़े इसलिए थोड़ा सा आपको टफ लगेगा, बाकी प्रॉब्लम सिंपल है ना। जब आप पढ़ने लगोगे, काइनेमेटिक्स जानोगे तो ये सारी प्रॉब्लम बहुत सिंपल हो जाएंगे, तो परेशान बिल्कुल भी नहीं होने की आवश्यकता है। सपोज इफ इट इज गिवन हियर द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी गिव्स एक्सेलरेशन। नाउ व्हाट यू शुड राइट, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, इट इज नथिंग बट dv अपॉन dt। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी के चेंज होने का क्या रेट है, दैट इज dv अपॉन dt एंड दैट इज इक्वल टू एक्सेलरेशन, है ना। एंड हियर इट इज गिवन द क्वेश्चन आई एम रीडिंग, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी गिव्स एक्सेलरेशन, the acceleration of a particle is a is equal to 3t square meter per second square, comma the velocity of particle at t is equal to 0 is 1 meter per second. Find the velocity of particle at t is equal to 2 meter per 2 second, t is equal to 2 second. मतलब this a is given, I am just writing here question number, this type of problem मतलब physical problems में, physical problems में मैं पहला क्वेश्चन करा रहा हूँ, दो कराएंगे बस, ज़्यादा नहीं। a d by t, dv by dt, a is equal to, here it is given 3t square meter per second square, ठीक है। and here it is also given कि at t is equal to 0, at t is equal to 0, हाँ t is equal to 0, velocity is 1 meter per second, it is given to you. then at t is equal to 2 second, find the velocity of particle at 2 second, हाँ v is equal to what, suppose if it is denoted by u, yeah, ये प्रॉब्लम है तो कोई खास बात थोड़ी ना है, जस्ट एक ही जगह रखिए, पुट करिए 3t स्क्वायर इज इक्वल टू dv ओवर dt, ओके। एंड नाउ यू कैन सी माय डियर स्टूडेंट, आई कैन राइट इट लाइक दिस 3t स्क्वायर dt, कुछ नहीं, dt को इधर कर दिए और इसको इंटीग्रेट कर दीजिए। अब यहाँ वेरिएबल t है तो t इज इक्वल टू 0 से लेकर 2 सेकंड तक, क्योंकि हमको 0 पे पूछ रहा है, 2 सेकंड पे है, 0 पे इन्फॉर्मेशन है, 2 पे नहीं है, तो 0 से लेकर 2 सेकंड तक जाना है। और 0 पे जो वेलोसिटी है वो है 1, और 2 सेकंड पे कितना वेलोसिटी नहीं पता, तो मान लीजिए v, तो इट इज नथिंग बट इंटीग्रेशन से ये कैंसिल हो जाएगा, है ना, बचेगा v, तो आ जाएगा यहाँ v माइनस 1, और हियर इट इज 3t क्यूब अपॉन 3, और यहाँ हो गया 0 से लेकर 2, ये 3 and 3 गेटिंग कैंसिल, सो इट इज v माइनस 1 एंड इट इज इक्वल टू t क्यूब, t की जगह पहले 2 रखेंगे तो 2 का क्यूब माइनस, नो 0 है ना, या हाँ ठीक है, सो हियर इट इज 0 का क्यूब, तो 0 का क्यूब तो 0 होगा, ये 2 का क्यूब, तो v इज इक्वल टू 2 का क्यूब 8 प्लस 1 दैट इज 9 मीटर पर सेकेंड। सो दिस इज बेसिकली द आंसर, है ना, कुछ नहीं है, इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन है जो आपको परफॉर्म करना है और कुछ नहीं। है ना, सो इस तरह के प्रॉब्लम्स अवेलेबल हैं। ओके,
चलिए एक और प्रॉब्लम करते हैं, कोई भी प्रॉब्लम करते हैं। सपोज इट इज गिवन लाइक दिस। दूसरा लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। हियर इट इज गिवन द नेट फोर्स ऑन अ पार्टिकल इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। हियर इट इज द इंफॉर्मेशन गिवन, मीन्स एफ नेट इज dp by dt, मीन्स रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम जो चेंज हो रहा है टाइम के रफ्तार से, वो यहाँ दिया हुआ है, ये दिया हुआ इंफॉर्मेशन आपको। इफ नेट फोर्स ऑन अ पार्टिकल F इज 3t² न्यूटन, इट इज गिवन, द फंक्शन इज गिवन टू यू 4 प्लस 3t² न्यूटन, इट इज गिवन टू यू, है ना, अलॉन्ग एक्स एक्सिस, मतलब ये यूनिडायरेक्शनल है एक्स एक्सिस में। आपको धीरे धीरे समझ में आएगा यूनिडायरेक्शन, बाई डायरेक्शनल, 3 डायरेक्शन क्या होता है, आपको सबको समझ में आ जाएगा, परेशान बिल्कुल भी मत हो। ओके, फाइंड द चेंज इन मोमेंटम फ्रॉम t इज इक्वल टू 0 टू t इज इक्वल टू 1 सेकेंड। आपको चेंज इन मोमेंटम निकालना है, t इज इक्वल टू, फाइंड चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम फ्रॉम t is equal to 0 to t is equal to 1 second. I think this one, yeah, okay. So now you have to just solve it. तो solve, देखिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, सॉल्यूशन। तो यहाँ देखिए एफ नेट की जगह पहले पुट करेंगे 4 प्लस 3t² एंड इट इज नथिंग बट dp ओवर dt, है ना। सो यहाँ हो जाएगा dp, ठीक है। ये क्या है, चेंज, तो मान लीजिए ये pi है और ये pf है, तभी तो pf माइनस, यानी मोमेंटम चेंज का मतलब क्या, pf माइनस pi, दिस इज द चेंज इन मोमेंटम। सो और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4 प्लस 3t² और dt, है ना। अब इसको आप डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, ये हो जाएगा p से pi से pf, और यहाँ आ गया आपको, इसको जब इंटीग्रेट करेंगे कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेकर 1 सेकेंड तक, है ना, टाइम वेरिएबल है तो 0 से लेकर 1 सेकेंड, तो 4t 0 से 1 प्लस 3t³ बाई 3, है ना, 0 से लेकर 1, 3 से 3 काट दीजिए, और यहाँ आपको आ जाएगा pf माइनस pi इज इक्वल टू 4, 1 माइनस 0 तो 1 बचेगा, प्लस tq में 1 रखोगे तो 1 बचेगा, 1 माइनस 0 तो 1 बचेगा, 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 5। सो pf माइनस p1 इज इक्वल टू 5 न्यूटन सेकेंड, है ना। न्यूटन सेकेंड कैसे पता चल गया, अब देखो ना यहाँ पे ये न्यूटन है और ये सेकेंड है, तो न्यूटन इंटू सेकेंड, है ना। dt का भी तो, dt क्या है, चेंज इन टाइम, dt क्या है, चेंज इन टाइम, तो 2 सेकंड में से 1 सेकंड घटाएंगे तो आएगा तो 1 ही सेकंड ना, टाइम से टाइम घट के तो टाइम ही आएगा, ऐसा थोड़ी है टाइम से टाइम घटेगा तो डिस्टेंस आ जाएगा, ऐसा नहीं होता, है ना। कई बच्चे कर देते हैं बट आपको अच्छा फील नहीं होगा थोड़ा। ओके, लेट अस चेक, मैंने कोई गड़बड़ तो नहीं करा ना। हाँ ठीक है, 4 प्लस 4 इंटू 1 में 0, 4 t³ 1, या इट इज़ ओके, है ना। तो इस तरह के प्रॉब्लम दोस्तों आपके पास आ सकते हैं और आपको बनाना है, मैंने शीट प्रोवाइड करा है, तो शीट में आप देख सकते हैं। तो ये हुआ आपको जो भी इंटीग्रेशन का प्रॉब्लम है वो मैंने आपको यहाँ पढ़ा दिए। अब दोस्तों देखिए, अब थोड़ा समराइज कर दे बातों को। इंटीग्रेशन में आपको क्या क्या ध्यान रखना है वो देख लीजिए। की पॉइंट्स इन इंटीग्रेशन, क्या क्या ध्यान रखने वो मैं बताया हूं आपको। देखिए, सबसे पहला बेसिक्स, दैट इज एरिया अंडर कर्व, एरिया अंडर कर्व, ये आपको आना चाहिए हर हाल में, जो मैंने बताया है, ठीक है, बेसिक्स। फिर उसके बाद फॉर्मूला, जो भी हमने लिखा है उतना ही फॉर्मूला याद करिए, दैट इज एनफ, है ना। फिर अब टाइप्स आते हैं, तो टाइप्स हो गया एक कि इंटीग्रेशन ऑफ y, जिसमें कि फंक्शन रहे किसका, सिर्फ x प्लस b का और एक ही फंक्शन हो, तो इस तरह का हम लोग डिफरेंशिएट इंटीग्रेट कर सकते हैं, और हम किए भी हैं।
सिर्फ क्या करना है, इंटीग्रल में कोफिशिएंट से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। नाउ अनदर टाइप, आई इज इक्वल टू, हाँ ये सब हो गया एक्स प्लस बी। अब कि अगर एफ एक्स और एफ डैश एक्स दोनों मौजूद हो, इस तरह के डिफरेंशिएशन मैंने आपको अभी दिखाया। उसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स फंक्शन, मतलब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इनवर्स ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन, ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन है ना। और उसके बाद सिंप्लीफिकेशन फंक्शन, और यू कैन से, या यू कैन से सिंप्लीफिकेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। वो लास्ट वाला जो मैंने तरीका बताया वो है ना। ये सारी चीजें आपको ध्यान होनी चाहिए। तो इस पैरामीटर्स पे आप काम कर लीजिए, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। और बाकी फिजिकल प्रॉब्लम्स तो कई सारे, वो तो हम लोगों को पूरे 2 साल करने हैं, ठीक है। ये सब चीज ध्यान दे लीजिए। जैसे एक चीज और, अगर कभी आपको आ गया कि y इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स, इसको कैसे आप करोगे इंटीग्रेट, सपोज 0 से लेकर π/2 तक करना है, कैसे इंटीग्रेट करोगे इसको। तो ऐसे प्रॉब्लम्स को करने के लिए मैं बताता हूं, इसको आप इंटीग्रेट कर सकते हो कैसे। आपको cos 2x पता है, क्या होता है cos 2x, cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, देख लीजिएगा मैंने पढ़ा है ये, है ना। अब यहाँ क्या है cos स्क्वायर एक्स, तो ठीक है cos स्क्वायर एक्स यहाँ रहने दीजिए। इसको क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस cos स्क्वायर एक्स, है ना। तो ये क्या है, cos स्क्वायर एक्स माइनस माइनस प्लस 2, यानी कि 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 एंड इट इज cos 2x। सो cos स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस cos 2x बाई 2, है ना। अब आप कर सकते हो, है ना। यू कैन सी हियर कि अब आप कर सकते हो। नाउ यू कैन, हियर इट इज आई इंटीग्रल फंक्शन, सो आई इज इक्वल टू, नाउ यू कैन डू 0 to π/2 एंड हियर cos स्क्वायर एक्स को आपको पुट करने के लिए क्या होना चाहिए, cos 2x अपॉन 2 dx। अब ये इंटीग्रेबल है, अब आप इंटीग्रेट आसानी से कर सकते हो। क्या करोगे, 2 बाहर निकाल दो, 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा x, और cos 2x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, sin 2x बाई 2, है ना। कोफिशिएंट से बस डिवाइड कर देंगे नीचे में, है ना। तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हो, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इसी तरीके sin स्क्वायर एक्स का भी कर सकते हो, ठीक है। इसी तरह sin क्यूब और cos क्यूब एक्स का भी कर सकते हो, बट वो थोड़ा लंबा हो जाएगा, रहने दो उसको, इतना काफ़ी है मेरे लिए, है ना। कर लीजिए इसको। ओके, तो इतने पॉइंट्स को आप ध्यान रखें, इंटीग्रेशन में आपको कभी प्रॉब्लम नहीं आएगा, फिजिक्स में प्रॉब्लम नहीं आएगा, ठीक है। चलिए कुछ चीज़ें और देख लीजिए। जैसे मान लो कोई फंक्शन है, अभी बिल्कुल नया चीज़ है, ठीक है। जैसे मान लो कोई फंक्शन है, जैसे मान लो सपोज v इज द फंक्शन ऑफ x, y और z, ये प्रॉब्लम है ना। कोई v चीज है, कोई v ऐसा फिजिकल पैरामीटर है मान लीजिए, जो x, y और z पैरामीटर पे डिपेंड करता है। इसको क्या बोलते हैं, v इज डिपेंडेंट ऑन दिस पैरामीटर x, y, z। ओके, तो v x पे भी डिपेंड कर रहा है, y पे भी डिपेंड कर रहा है और z पे भी डिपेंड कर रहा है, ठीक है। सपोज इफ आई वांट टू राइट चेंज इन v, बोला गया फाइंड चेंज इन v, है ना। इसका क्या मतलब है, हमको क्या बोल रहा है, हमको बोल रहा है कि आप dv निकालिए, यही होता है ना चेंज इन v। बोला कि आप dv निकालिए, तो dv कैसे निकालेंगे, तो dv के लिए यहां देखिए, dv इज इक्वल टू क्या करेंगे, ये फंक्शन उठाएंगे, ये फंक्शन कौन सा है v। तो अब यहाँ पार्शियल, क्योंकि यहाँ देखिए यहाँ तीनों फंक्शन पे डिपेंड कर रहा है, तो जब तीनों पे करें तो मुझे पार्शियल का यूज लेना चाहिए। यहाँ पे ये एग्जैक्ट होगा क्योंकि हमको टोटल चेंज निकालना है। समझते जाइए मेरी बातों को। इसमें क्या करेंगे कि डेवर v
ओवर डेवर एक्स, दिस इज पार्शियल डेरिवेटिव। ये क्या है? चेंज ऑफ v विथ रिस्पेक्ट टू x, यानी कि x डायरेक्शन में चलेंगे तो इसमें जो चेंज आएगा वो ये है। अब आपको x में कितना चलना है, तो मान लीजिए dx। तो x में अगर हम देखो, ये तो तीनों फंक्शन है तो मुझे तीनों में चलना है, x में भी चलना है, y में भी चलना है और z में चलना है। तो अगर तीनों डायरेक्शन में चलना है तो तीनों डायरेक्शन का वेरिएशन भी तो चाहिए। तो तीनों डायरेक्शन का वेरिएशन क्या है? एक है डेवर v ओवर डेवर x, और y डायरेक्शन का क्या है? डेवर v ओवर डेवर y dy, और z का क्या है? डेवर v ओवर डेवर z dz। ये एक्सप्रेशन आपको याद रखने हैं। ये क्या है? ये है चेंज इन x, ये क्या है? चेंज इन y, और ये क्या है? चेंज इन z। जब ये पूरा निकाल लेंगे तो ऑटोमेटिक चेंज इन v नहीं आ जाएगा। तो इस एक्सप्रेशन को आपको याद रखना है कि dv अगर एग्जैक्ट टोटल चेंज निकालना है v में तो मुझे ऐसे लिखना चाहिए, dx अब और भी फंक्शन हुआ तो और भी है, 2 रहे तो यहीं तक है, 3 रहे तो यहां तक है, 1 रहे तो यहां तक है ना? ये इसको लिख लीजिए। और इसको लिखने के बाद हम लोग ना कुछ क्वेश्चन छोड़ दिए थे एरर्स में, जो कि बोले थे कैलकुलस के बाद पढ़ाएंगे, वो यहाँ पे है। सो आई विल टेक सम प्रॉब्लम जो कि मैंने छोड़ दिया था। ओके, अब जैसे सपोज कीजिए कि आपको प्रॉब्लम आया था कि सर, जैसे मैं बताऊं आपको, इसको रख करते हैं। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन आ गया, जैसे आपके पास मैंने आपको पढ़ाया था जो कि y इज इक्वल टू सपोज x टू द पावर 5 t टू द पावर 3, ठीक है, z टू द पावर 2, ऐसा कुछ आ जाए और आपको बोला गया y में एरर निकालिए, तो वो आपको आता है, वो मैंने आपको पढ़ाया था कि डेवर y ओवर, इसको लिख सकते हैं ऐसे 5 डेल्टा x अपॉन x प्लस 3 डेल्टा t अपॉन t प्लस 2 डेल्टा z अपॉन z, है ना? और फिर डेल्टा x अपॉन x का जो वैल्यूज है वो आप रखते चलिए, आपका आंसर आता चलेगा, उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी एक्स में। लेकिन ठीक है ऐसा अगर है तब तो, लेकिन अगर ऐसा नहीं है, मतलब मैं आपको एक प्रॉब्लम लिख रहा हूं जिसमें आपको प्रॉब्लम आएगा, एंड यू कैन सी, जैसे मैं लिखूं, suppose problem is given to you, find the error, example 1 in ln x, this type of problem, if suppose you puzzled in this type of problem। अब तो सर ln x है, जैसे ये कौन सा फंक्शन बोलते हैं, अगर मान लो यही फंक्शन आ जाए या फिर t3 z2 कुछ भी, मतलब अगर ऐसा, इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे, इस प्रॉब्लम को बोलते हैं एरर प्रोपेगेशन इन प्रोडक्ट एंड डिवीजन फॉर्म। ठीक है, अगर ऐसा आ गया तो चलेगा, तो तुमको आता है सॉल्व करने, ठीक है। लेकिन दुनिया में और भी टाइप के एरर, और भी टाइप के फंक्शन है, सिर्फ यही फंक्शन तो है नहीं, है ना? और भी टाइप के फंक्शन, इसको बोलते हैं एरर प्रोपेगेशन इन प्रोडक्ट एंड डिवीजन फॉर्म। अगर ये प्रोडक्ट या ये तो या तो प्रोडक्ट है या तो डिवीजन है या दोनों है, तो ऐसा अगर रहेगा तो हो जाएगा, लेकिन ऐसा रहेगा तो क्या होगा, है ना? तो ऐसे प्रॉब्लम के लिए हम लोग अपना डिफरेंशिएशन का मेथड यूज करते हैं कि मुझे क्या करना है। सपोज इन दिस क्वेश्चन इट इज गिवन, if y is equal to ln x, the percentage error in x is 5%, मतलब
परसेंटेज एरर इन x इज गिवन टू यू 5%. फाइंड परसेंटेज एरर इन y. ये आपको बोला गया सवाल है ना, ये सवाल आपको बोला गया कि भाई साहब इसको आप सॉल्व करिए. बोला ठीक है कोई बात नहीं सर, हो जाएगा, कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी ना है इसमें. करना ये है कि आपको निकालना है परसेंटेज एरर इन y, है ना. ठीक है चलेगा. तो मुझे क्या करना चाहिए, मतलब अगर इसमें चेंज हो जाए, आपको बेसिकली क्या निकालना है, डेल्टा y निकालना है. तो इसको कैसे करेंगे, आपको चेंज किसमें चाहिए, इसमें चेंज तो इसमें तो दिया हुआ है, इसमें आपको चेंज निकालना है. तो आपको क्या चाहिए बेसिकली, चेंज इन y, मतलब dy. क्या चाहिए, dy चाहिए या डेल्टा y चाहिए, यही ना चाहिए जी, और क्या चाहिए, जो मर्जी है वो लिख लो, डेल्टा y लिखो, dy लिखो, सब चलेगा. तो ये dy लिखते हैं जब ये डेल्टा y बहुत छोटा होता है ना, और बड़ा रहता है तो ये लिखते हैं. बट यहाँ पे आप दोनों से रिप्रेजेंट कर सकते हो, मर्जी हो इससे रिप्रेजेंट कर लो या इससे रिप्रेजेंट कर लो. ओके एनीवे, सो dy इज इक्वल टू क्या है, ये किसका फंक्शन है, x का फंक्शन है. तो सीधा आप क्या करो, आपको चेंज इन y निकालना है, तो डेवर y ओवर डेवर x इंटू डी एक्स. पहले तो आप ये लिख लो, फिर आप क्या करो कि dy इज इक्वल टू, आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है फाइंड एरर इन y. नो नो नो, नॉट परसेंटेज एरर, सॉरी, एरर इन y. फाइंड, वो भी निकाल सकते हैं बट प्रॉब्लम अभी ये नहीं कर रहा. एरर इन y मतलब आपको सिर्फ ये निकालना है, ये है ना. और इसके निकालने का फॉर्मूला हम अभी आपको बताएं, ये वाला. तो ये क्या है, ln x ओवर डी एक्स इंटू डी एक्स, है ना. तो ये क्या है दोस्तों, dy इज इक्वल टू ln x का क्या होता है, 1/x इंटू डी एक्स. अच्छा, यानी कि इसका वैल्यू तो प्रोवाइडेड है 5%. तो इसका जैसे ये किसका वैल्यू है, ये वैल्यू है dx ओवर x इंटू 100, दैट इज इक्वल टू 5. ये दिया हुआ है ना. तो dx ओवर x का क्या वैल्यू हो जाएगा, 5/100, दैट इज 0.05, है ना. तो ये हो गया आपका dy इज इक्वल टू 0.05. ये देख लीजिए, आ गया आंसर. तो इसके लिए आपको इसका नॉलेज चाहिए, ठीक है. अच्छा, ये जो फॉर्मेट है, ये जो तरीका है, वो ब्रह्मास्त्र है, वो कहीं भी चल जाएगा, कहीं भी किसी भी फंक्शन में आप इसको यूज़ कर सकते हो. अब चाहे फंक्शन प्रोडक्ट डिवीजन हो, चाहे प्लस माइनस हो, आप वहाँ भी यूज़ कर सकते हो, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है. मैं ऐसा एक क्वेश्चन और आपको बताऊँगा एंड दैट विल बी द लास्ट क्वेश्चन. एक आईआईटी में पूछा गया सवाल है, आईआईटी जेईई मेन 2013 में पूछा गया सवाल, मैं बताता हूँ, इसको लिख लीजिए आप. चलिए, क्वेश्चन नंबर 9. द करंट वोल्टेज रिलेशन ऑफ अ डायोड इज गिवन बाई, जो करंट वोल्टेज का रिलेशन है वो डायोड का, वो ऐसा दिया जाता है, I इज इक्वल टू E अपॉन 1000 V ओवर T. ये दिया हुआ है ना, मतलब ऐसा T, है ना, -1, ये दिया हुआ है आपको. और अच्छा सवाल है ये, इसमें बच्चा अगर मैनिपुलेट नहीं कर पाया तो प्रॉब्लम हो सकता है. फंक्शन तो ये दिया हुआ है, मेरे समय में आया था जब मैंने दिया था, जब नहीं मेरे समय कुछ और प्रॉब्लम, इसी टाइप का प्रॉब्लम था, एक दूसरा प्रॉब्लम था. हाँ ठीक है, कोई बात एनीवे. तो ये है वेयर द अप्लाइड वोल्टेज V इज इन वोल्ट एंड टेम्परेचर T इज इन केल्विन. ओके, इफ अ स्टूडेंट मेक्स एन एरर मेजरिंग प्लस माइनस 0 पॉइंट, यानी कि वोल्टेज में जो एरर है वो डेल्टा V जो है वो 0.01 वोल्ट है. वाइल मेजरिंग द करंट 5 एम्पियर एट 300 केल्विन. वाइल मेजरिंग द करंट, यानी कि जब ये मेजर कर रहा था करंट, तो वोल्टेज में जो एरर आ रहा था वो ये आ रहा था, ठीक है.
और जब करंट वो कितना करंट मेजर कर रहा था, तो 5 एम्पियर, कितने टेम्परेचर पे, एट 300 केल्विन पे। ये सवाल है। अब नहीं, ये तो मतलब जो दिया हुआ स्टेटमेंट। नाउ व्हाट विल बी द एरर इन द वैल्यू ऑफ करंट। अब इस वोल्टेज में दिक्कत आने की वजह से करंट पे क्या दिक्कत आएगा, है ना। तो आपको निकालना है फाइंड एरर इन करंट, एरर इन करंट इन मिली एम्पियर। ये मिली एम्पियर में चाहिए। अच्छा, करंट भी मिली एम्पियर, हाँ करंट भी मिली एम्पियर में, ये भी मिली एम्पियर में, है ना। ऐसा तो ऐसा बोला गया आपको निकालिए। इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। इसमें आप जो अभी वाला देखो, यहाँ आई किसका फंक्शन है, v और t का फंक्शन है ना, जिसमें v वेरी कर रहा है और t वेरी नहीं कर रहा, और ये तो एक्सपोनेंट है, छोड़ दीजिए उसको। यहाँ पे अगर आप ये करोगे, डी आई इज इक्वल टू डेवर आई ओवर डेवर v इंटू डी वी प्लस डेवर आई ओवर डेवर t इंटू डी टी, ये नहीं आएगा। आप करके देख लीजिएगा, ये नहीं आएगा। करना यही है, बट थोड़ा चेंज करके, ठीक है। कई बच्चे इनिशियली में मेरे पास भी आए थे ये प्रॉब्लम लेके, तो फंसता इसमें है क्योंकि बच्चा जानता है कि इससे सॉल्व हो जाएगा, इससे होगा नहीं। इसमें थोड़ा चेंज करना है, फिर वो यूज़ करना है, फिर आप वही यूज़ करेंगे यही यूज़, लेकिन थोड़ा चेंज करके। थोड़ा चेंज क्या है, तो जरा ध्यान से देखिए। इसको क्या लिख सकते हैं, i प्लस 1 इज इक्वल टू ई टू द पावर 1000v ओवर टी माइनस, सॉरी ये लिखेंगे। अच्छा, अब दोनों साइड लॉग ले लीजिए, ln i प्लस 1 इज इक्वल टू, अब ln लेंगे इसमें, तो ln ये वाला टर्म यहाँ चला आएगा 1000v ओवर टी, और ये हो जाएगा ln e का वैल्यू कितना होता है 1, तो 1 तो इसके साथ मल्टीप्लाई होकर 1 बन जाएगा। चलिए ये हो गया। अब आपको इसको डिफ्रेंशिएट करना है। अब आप क्या करें, दोनों साइड डिफ्रेंशिएट करें, करना ये सही था। अब इसको दोनों साइड डिफरेंशिएट करें। अगर आप दोनों साइड डिफरेंशिएट करेंगे, इसको i के साथ डिफरेंशिएट करिए, इस टर्म को। अगर इसको i के साथ डिफरेंशिएट करिए तो क्या आएगा, 1 अपॉन आई प्लस 1 इंटू डी आई, ठीक है। और इसको वोल्टेज के रिस्पेक्ट में 1000 अपॉन टी इंटू डी वी, है ना। आपको चाहिए ये, आ गया सिंपल। डी आई इज इक्वल टू, ऐसे इंटीग्रेट किया जा सकता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आप इसको इंटीग्रेट करें, डिफरेंशिएट, इसको डिफरेंशिएट करिए आई के रिस्पेक्ट में, और बगल में डी आई लगा दीजिए। ये क्या है, ये है डी ln आई प्लस 1 ओवर डी आई इंटू डी आई, ये है। तो मैंने इस पोर्शन को डायरेक्ट ऐसे लिख दिया है, उसी तरह यहाँ भी इसको ऐसे मैंने कर दिया, है ना। तो ये हो गया डी आई इंटू इज इक्वल टू आई प्लस 1 अपॉन टी इंटू 1000 इंटू डी वी, है ना। अब वैल्यूज रख दीजिए। आई कितना मेजर कर रहा था उस समय, 5, तो 5 प्लस 1 ओवर टी कितना था 300 इंटू 1000 इंटू, और डी वी कितना है 0.01, बस। और आपको कुछ नहीं करना है ना। आपको अब यहाँ पे 2 जीरो है, तो 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए, है ना। और ये हो गया आपका 6 बटा, लिख देते हैं यहाँ पे, डी आई इज इक्वल टू 6/300 इंटू 10, आई थिंक दिस वन, यस। यहाँ 1 से 1 जीरो काट दीजिए, सो डी आई इज इक्वल टू 6 पंचे 30, 1/5, एंड दैट इज 0.2 मिली एम्पियर। दिस इज द आंसर बेसिकली, ठीक है ना। बड़ा फेमस क्वेश्चन है, कई सारे बुकों में रहता है, बट इसके सॉल्यूशन में कई सारे स्टूडेंट नहीं दिमाग लगा पाते, तो इसमें करना ये है बेसिकली, है ना। चलिए क्वेश्चन और बताते हैं आपको, पहले इसको कर लीजिए। एक वेरिएशन है और एक क्वेश्चन में, है ना, उस टाइप का प्रॉब्लम आपको बता देते हैं, दैट विल बी द लास्ट प्रॉब्लम। बस ये जो बचा कुछ प्रॉब्लम था वो मैंने ख़त्म कर दिया है। देखिए, जैसे सपोज कर लीजिए क्वेश्चन, R1 इज इक्वल टू
3 प्लस माइनस 0.2 ओम एंड R2 इज इक्वल टू 6 प्लस माइनस 0.3 ओम, 0.3 ओम, ऐसा। ठीक है, इज दिस ओके? अब इसमें पूछ रहा है कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सीरीज कॉम्बिनेशन में पैरेलल कॉम्बिनेशन का आंसर क्या है। पहले सीरीज कॉम्बिनेशन देखते हैं। सीरीज कॉम्बिनेशन निकालना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। सीरीज में क्या होता है, ये जुड़ जाता है R1 प्लस R2, सो इट इज 6 3 9 प्लस, और इसको जोड़ देना है 0.6 ओम। ठीक है, आप ऑप्शन में देखोगे तो ऑप्शन में अवेलेबल होगा, क्योंकि ये मल्टीपल चॉइस आंसर है। मैं बताऊँ, इसमें जो ऑप्शन दिया हुआ है वो ऑप्शन कुछ इस तरीके का है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। पहला सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन में पहला आंसर है वो 9 प्लस माइनस 0.5। अच्छा, ये 0.5 भी आएगा, 0.5 ओम पहला। दूसरा, सीरीज कॉम्बिनेशन में 9 प्लस माइनस 0.1। देखो ये घटा दिया है, तो सोचा कि स्टूडेंट कहीं कंफ्यूज हो जाए, बट आंसर ये है, पहला आंसर तो ये है, और ये मल्टीपल चॉइस है। ठीक है ना। और पैरेलल कॉम्बिनेशन में, पैरेलल कॉम्बिनेशन में 2 प्लस माइनस 0.12 ओम। ठीक है, एंड डी यानी कि फोर्थ पैरेलल कॉम्बिनेशन वो है 2 प्लस माइनस 0.5। ये आंसर दिया है, तो एक तो मिल गया ना। मल्टीपल है, पैरेलल में भी चेक करना पड़ेगा कितना होगा। ठीक है ना, तो चेक करते हैं उसको, कोई बहुत बड़ी बात नहीं, परेशान मत हो। पैरेलल में चेक करते हैं, सीरीज में तो ये चेक कर लिया हमने। पैरेलल में क्या हो जाएगा, आर इक्विवेलेंट वो हो जाएगा R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, है ना ये। ठीक है दोस्तों, अब इसको मान लीजिए T, लेट T इज इक्वल टू R1 प्लस R2। अगर T R1 प्लस R2 हो गया, चलिए ठीक है, तो R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, R1 प्लस R1 R2 ओवर T, है ना। आपको चाहिए इसमें चेंज, आपको क्योंकि आपको क्या चाहिए, आर इक्विवेलेंट। आर इक्विवेलेंट में एक आंसर होगा और एक कुछ एरर होगा। देखो आप, ये और ये टर्म तो आप आराम से निकाल सकते हैं, ये तो टर्म डायरेक्ट निकाल लोगे, या आप इसको और इसको पकड़ो, 3 और 6, 1/3 प्लस 1/6 आप आराम से निकाल सकते हो। 18 और 9, 9 दूना 18, तो आर इक्विवेलेंट 2 ओम हो जाएगा। ये तो आप आराम से निकाल, इसको पकड़, इसको निकालने में टेंशन होगा। तो इसको कैसे आएगा, तो ये क्या है, ये कुछ नहीं है, ये है डेल्टा आर इक्विवेलेंट। आपको यही निकालना है, उसी में टेंशन आएगा, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो डेल्टा आर इक्विवेलेंट का हमको ये टर्म पता है, आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू डेल्टा R1 ओवर R1 प्लस डेल्टा R2 ओवर R2 प्लस डेल्टा T ओवर T, ये है ना। अब मुझे ये पता है, ये डेल्टा T नहीं पता, डेल्टा निकल जाएगा, बट T पता है मुझे, है ना। वो वैल्यूज रखने हैं आपको, है ना। तो कैसे निकालेंगे, देखिए मैं बता देता हूँ आपको। T तो आपको पता है, तो T क्या है, R1 प्लस R2। R1 क्या है, 3 और 6, तो होगा 9। अब डेल्टा T कितना हो जाएगा, तो डेल्टा T हो जाएगा आपको इन दोनों का जोड़, मतलब 0.5 ओम। पहली बात तो ये, ठीक। अब वैल्यूज पुट करिए। नाउ डेल्टा आर इक्विवेलेंट अपॉन 2 इज इक्वल डेल्टा R1 कितना हो जाएगा, 0.2 अपॉन 3 प्लस डेल्टा R2 कितना हो जाएगा, 0.3 अपॉन 6, और प्लस डेल्टा T कितना है, 0.5 अपॉन T कितना है, 9। ठीक है, अब इसको आप सॉल्व करिए एंड यू विल गेट द आंसर। आपको ये सॉल्व करना पड़ेगा, तो सॉल्व कर लेते हैं। ये हटा दीजिए, ये हटा दीजिए, ये हटा दीजिए, है ना। अब 30 60 90 आ गया, तो आई थिंक 90 विल बी द LCM। 90 30 3 तो 3 दूना 6, 60 नहीं 180 लेना पड़ेगा, 180, है ना। 30 6 दूना 12, 60 3 9, और प्लस 90 दूना तो 10, है ना। और इट इज इक्वल टू डेल्टा आर इक्विवेलेंट अपॉन 2 से ये काट दीजिए, तो 90 बार में कट जाएगा, और ये आ गया 12 9 21 10 31/90, 31/90, है ना। तो डेल्टा आर इक्विवेलेंट कितना है, 31/90।
डेल्टा आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 31/90, है ना। ये आसपास कैसा है, 30/90 के आसपास ले सकते हैं कैलकुलेशन इजी करने के लिए। तो 30/90 मान लो ये अप्रोक्सीमेटेड है 30/90, है ना। तो ये हो जाएगा 1/3, और 1/3 कितना होता है 0.333 ये। बट ऑप्शन में है क्या अवेलेबल, ऑप्शन में नहीं है अवेलेबल। तो क्या सर मेरा वो गलत है, आंसर है गलत नहीं है, सही है वो भी। तो भाई दिक्कत कहाँ आया, ढूंढिए। ढूंढना पड़ेगा आपको, आप ढूंढिए, कैसे ढूंढिएगा इसको, ये ढूंढना बहुत जरूरी है। सही तरीका तो मेरा सही था, तरीका गलत तो नहीं है। चलिए देखते हैं प्रॉब्लम को, थोड़ा देखते हैं, है ना। 1 मिनट, तरीका तो मेरा सही है, तो ये आंसर गलत नहीं है। सबसे पहली बात वहाँ नहीं है, वो अलग बात है, मैं बता रहा हूँ किस लिए नहीं है वो। आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 2 ± 0.33, ये मुझे आ गया, इसको यहाँ रख देते हैं, ठीक है। बट आंसर ऐसे नहीं आया, तो क्या है भाई प्रॉब्लम क्या है। अब कौन सा आंसर करे, ये कि ये समझ में नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, परेशान मत हो। करना ये है बच्चों कि दूसरा वाला मेथड अप्लाई करेंगे, डिफरेंशिएशन वाला, है ना। कि ठीक है 1/r इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 होता है कि नहीं होता है, होता है, ठीक है। तो अब डिफरेंशिएशन का मेथड यूज करेंगे। क्या, इसको डिफरेंशिएट करिए 1/r इक्विवेलेंट के टर्म्स में, इसको डिफरेंशिएट करिए r1 के रिस्पेक्ट में, इसको डिफरेंशिएट करिए r2 के रिस्पेक्ट में। मतलब डेवर 1/r इक्विवेलेंट ओवर डी आर इक्विवेलेंट। आगे से हम लोग इसको डायरेक्ट भी करेंगे, ठीक है, इसलिए याद रखिएगा ऐसा, है ना। दैट मस्ट बी इक्वल टू, मतलब इसमें जो चेंज होगा वो इसमें चेंज और प्लस इसमें चेंज, बात तो मतलब वो तो बराबर होना चाहिए। और ये हो गया 1/r1 अपॉन dr1, इसको याद कर लीजिए, बहुत काम का चीज़ है ये। डेवर 1/r2 ओवर dr2, है ना। मतलब अगर ये बराबर है, मतलब दिस इज इक्वल टू दिस प्लस दिस, तो इसमें जो चेंजेस आएंगे, इसमें जो चेंज आएगा और इसमें चेंज आएगा, इसमें तो इसका चेंज जुड़ के इसका चेंज होना चाहिए, सीधा लॉजिक बात है ना। बोला बात तो सही है सर। अच्छा, इसमें मैंने एक चीज छोड़ दिया, यहां पे हो जाएगा इंटू dr1 प्लस 1/r2 dr2 इंटू dr2, है ना। वही वाला चीज है, पहले वाला, है ना। ये वही पहले वाला चीज है, आप देख सकते हो। तो ये ऐसे हो गया इसको, है। तो इसमें क्या करें भाई, तो भाई इसको आप डिफरेंशिएट करिए, तो क्या हो जाएगा, डी आर इक्विवेलेंट तो ऐसा ही रह जाएगा, और ये आ जाएगा -1/r इक्विवेलेंट का स्क्वायर। कैसे आगे मैं बता देता हूँ। अगर आप 1/x को डिफरेंशिएट करोगे तो क्या होगा, इसको लिख सकते हैं क्या, x⁻⁻1, तो हो जाएगा -1 इंटू x -1 दैट इज -1 x⁻⁻1 दैट इज -1/x²। ये लिख सकते हैं, दैट इज वाई आई हैड रिटन दिस, है ना। आप भी कर सकते हो, दैट इज यहाँ हो जाएगा -dr1 ओवर r1² प्लस -dr2 ओवर r2², ठीक है। फॉर द टाइम बीइंग आई हैड डन ऑल द थिंग्स, बट ऐसे किसी भी एक्सप्रेशन के साथ कर सकते हैं, किसी भी, माइंड इट व्हाट आई एम सेइंग, किसी भी एक्सप्रेशन के साथ कर सकते हैं।
परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आप इधर डिफरेंशिएट करें, इधर डिफरेंशिएट करें, जो फंक्शन अवेलेबल है, मतलब यहाँ आर इक्विवेलेंट अवेलेबल है तो आर इक्विवेलेंट के टर्म्स में इसको डिफरेंशिएट किए और मल्टीप्लाई कर दिए डी आर क्यूब। इसको R1 के टर्म्स में डिफरेंशिएट किया, मल्टीप्लाई कर दिए DR1, और इसको R2 के टर्म्स में डिफरेंशिएट किया और लिख दिया DR2। कोई फर्क नहीं आने वाला है ना। ये काम हम कर सकते हैं। अगर आपको क्लास में पढ़ा रहा होता या फिर हम जब आगे पढ़ाएंगे तो इस टर्म को हम डायरेक्ट लिखेंगे, इसको हम सीधा करेंगे DR इक्विवेलेंट अपन R इक्विवेलेंट स्क्वायर। आपको समझना है कि हमने किया ये है, ये बार बार नहीं लिखा जाएगा, है ना। इसको हम सीधा लिखेंगे, दैट इज इक्वल टू माइनस DR1 अपॉन R1 स्क्वायर और प्लस माइनस DR2 ओवर R2 स्क्वायर। ये हम सीधा लिखेंगे, आपको बिल्कुल भी डरने की आवश्यकता नहीं है, वो यहाँ से आया है ना। ऐसे टर्म्स आ सकते हैं आपके लाइफ में, तो परेशान बिल्कुल भी ना हो। लॉजिक यही है कि अगर ये इज इक्वल टू दिस प्लस दिस है तो इसमें और इसमें चेंजेस मिलाएंगे तो वो इसके चेंजेस के बराबर होने चाहिए, सीधी बात है ना। तो अब यहाँ देखें, अब यहाँ माइनस माइनस कॉमन ले लेंगे तो कट जाएगा, है ना। आपको क्या निकालना है, ये DR इक्विवेलेंट, और R इक्विवेलेंट कितना है 2, तो 2 का स्क्वायर 4, और इसमें DR1 कितना है, तो DR1 है 0.2 और R1 कितना है 3, तो 3 तिहाई 9 प्लस DR2 कितना है 0.3 और R2 कितना है 6, तो 6×1 36, ये है ना। अच्छा, अब हम क्या करें, अब हमको बस सॉल्व करना और कुछ नहीं करना। पहले इसको लिख लीजिए, मैं इसे सॉल्व कर देता हूँ। नोट कर ले, फिर से समझ लीजिए, इसमें जो चेंज है वो इसके चेंज और इसके चेंज के बराबर है ना। परेशान नहीं होना आपको। चलिए अब जो है मैं कैलकुलेशन कर दूं थोड़ा। कैलकुलेशन करेंगे तो क्या निकलेगा, DR इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 4 इंटू 36, 9 चौक 36 तो 0.8, 36 1 36 तो 0.3, है ना। 4 9 36 एंड इट इज 8 3 11 0.11 अपॉन 9, 0.11 अपॉन 9, ठीक है। दिस इज DR इक्विवेलेंट, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करना है आपको, सिंप्लीफाई करिए। अगर हम थोड़ा आसपास की वैल्यूज में जाएं, ठीक तो है, हाँ ठीक है। 0.2 3 3 9 and here R2 is 0.3 36, ठीक, ओके। और लगभग तो मुझे तो सही लग रहा है 36 8 प्लस 3। ओ मैंने कुछ गड़बड़ किया है लगता है। ओ यहाँ 1.1 होगा ना ये, हाँ यही तो प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक, ये आ गया है ना। चलिए अब करते हैं कि इसको सिंप्लीफाई करना है मुझे। अब ये 9 है, इसको 10 आप कैलकुलेट कर सकते हो, वो मतलब वो खुद भी आप कर सकते हो, उसमें मेरी कोई खास आवश्यकता आपको नहीं है, ठीक है ना। हम तो शॉर्टकट जानते हैं। इसको 10 के आसपास अगर हम मान लें, अगर हम इसको 10 के आसपास मान लें तो आंसर कितना है 0.11। अरे अब उसके सबसे करीब कौन सा आंसर है, आंसर ये वाला है ना। और 9 करोगे तो 0.12 ही आ जाएगा, परेशान मत हो बिल्कुल भी। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। तो यानी कि सर कहना क्या चाह रहे हो आप, डिस्टर्ब होने की आवश्यकता नहीं है। ये देखिए ये आंसर है, इनमें से कौन सही आंसर है दोनों में से, तो आंसर है सही दोनों है ना। तरीका अलग अलग है, सही दोनों है। अगर इसमें पूछा गया ज़्यादा करेक्ट कौन है, ज़्यादा करेक्ट ये वाला है। डिफरेंशिएशन का मेथड हमेशा अच्छा होता है ना। बाकी जो मेथड हम लोग पहले कर रहे थे वो डायरेक्ट मेथड है ना। वो डायरेक्ट मेथड है, अपने लॉजिकल से कुछ चीज़ों को हम लोग ओमिट करके, मतलब नेग्लेक्ट करके ला रहे थे।
डिफरेंशिएशन का मेथड है, अच्छा मेथड है, सारे पैरामीटर्स को लेता है, एरर्स बहुत कम होते हैं डिफरेंशिएशन में, जो कि हम लोग पहले भी देख चुके हैं, है ना। तो वो वैल्यू आ गया। सबसे पहली बात, दोनों में से सबसे ज़्यादा सही कौन है, तो आंसर ये वाला, तो यहाँ पे ये सही करें। अब कहने का मतलब अगर इस टाइप में अगर प्रॉब्लम आ जाए तो क्या हमेशा हमेशा इसी से सॉल्व होगा? आंसर है नहीं, आपको दोनों सॉल्व करने पड़ेंगे। यस, आपको दोनों सॉल्व करना पड़ेगा और दोनों में से कोई एक ही आंसर यहाँ पे होगा। इन दोनों में से या तो ऑप्शन ये अवेलेबल होता या तो ऑप्शन ये अवेलेबल होता, दोनों कभी अवेलेबल नहीं होता। अब मान लीजिए आपका किस्मत बहुत ज़्यादा खराब है, हो सकता है कि आपका किस्मत बहुत ज़्यादा खराब हो, ये दोनों आ जाए तो आंसर ज़्यादा करेक्ट ये वाला होगा, आप ये वाला मारेंगे। तो मेरी बात ध्यान से सुने, क्योंकि मार्क्स लाना है ना, है ना। तो ये दोनों में सही कौन है? दोनों सही है। सबसे ज़्यादा सही कौन है? तो ये वाला। तो जब ये वाला दे तो ये वाला सही करेंगे, ये वाला दे तो ये वाला सही करेंगे। तो सर ज़्यादातर कौन सा मिलेगा? ऊपर वाला। ये आपको एग्जाम्पल देके दिखाए हैं, क्योंकि वो भी, ये भी तरीका जो मैंने करा है वो भी इंपॉर्टेंट है ना। पहले आप ये वाला करोगे, ज़्यादा चांसेस है कि ऊपर वाला मिल जाएगा, है ना। और अगर नहीं मिले तो आप दूसरा ट्राई करो। तो आई थिंक इट इज़ क्लियर टू यू, है ना। ये ज़रूरी है, इसलिए मैं आपको बता दिया, ठीक है। चलिए एक प्रॉब्लम और कर लेते हैं। इसमें छोटा सा प्रॉब्लम है जिसमें कि आपको क्लियर हो जाए कि जो हम कहना चाह रहे हैं वो क्या है। ओके, कम टू प्रॉब्लम नंबर 26 देखते हैं। इसमें ही एक प्रॉब्लम है, मतलब आपको शीट है तो शीट देखिए, शीट में समझ में आ जाएगा। शीट में ये सेकंड शीट में है, कुछ एरर के शीट में सेकंड डीपीपी एंड क्वेश्चन नंबर 26 आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 26, इसमें दिया हुआ है कि मिरर फॉर्मूला जो है वो इस रिलेशन से दिया जाता है, जो कि हम सबको पता है, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, हम सब जानते हैं। एंड u इज गिवन टू बी 30 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 0.3 सेंटीमीटर एंड v इज गिवन टू बी 60 प्लस माइनस 0.6 सेंटीमीटर। ओके, द मैक्सिमम परसेंटेज एरर इन मेजरमेंट ऑफ फोकल लेंथ इज n%, मतलब डेल्टा f अपॉन f है ना इंटू 100, जो कि क्या है परसेंटेज एरर इन f इज n%। फाइंड द वैल्यू ऑफ n, दिस यू हैव टू फाइंड n। तो कहे कि ठीक है भाई, निकल जाएगा, ठीक है। तो इन दोनों में आपको समझ में आ गया होगा। अब इसको देखते हैं भाई, ये भी तो वैसा ही सवाल है, ये भी तो वैसा ही सवाल है। तो इसको कैसे सॉल्व करें? तो देखिए, मुझे पता है कि f इज इक्वल टू नथिंग बट यू वी अपॉन यू प्लस वी, आप सबको पता है ना। तो अब देखिए यू वी, अब इसको मान लीजिए t, लेट t इज इक्वल टू यू प्लस वी। तो t इज इक्वल टू यू प्लस वी कितना हो गया? u और v हो गया आपको 30 और 60, दैट इज 90, दैट इज 90। ओके, एंड डेल्टा टी कितना हो गया? डेल्टा टी हो गया 90 सेंटीमीटर ये है, और डेल्टा टी हो गया, इन दोनों को जोड़ दिए 0.6 प्लस 0.3 0.9 सेंटीमीटर, ये आ गया आपका, है ना। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं f इज इक्वल टू यू वी अपॉन टी। तो डेल्टा f अपॉन f इज इक्वल टू डेल्टा u अपॉन u प्लस डेल्टा v अपॉन v प्लस डेल्टा t अपॉन t। ये फॉर्मूला था, आपको पता है। तो कहने का मतलब ये है कि ठीक है, तो अब देखें इसमें कैसे निकालते हैं। अब परसेंटेज जो सब में आएगा, डेल्टा u अपॉन u क्या है भाई? डेल्टा u है 0.3
0.3 अपॉन u क्या है भाई 30 प्लस डेल्टा v कितना है भाई 0.6 अपॉन 60 और डेल्टा t कितना है 0.9 अपॉन 90. ओके, सो जस्ट लाइक दिस यू कैन सी, है ना. तो ये 1 अपॉन 100 1 अपॉन 100 और 1 अपॉन 100 आ गया. तो डेल्टा f अपॉन f इज नथिंग बट 3 इंटू 1 अपॉन 100, है ना. अब इसमें परसेंटेज कर दीजिए, तो इंटू 100 इधर भी कर दीजिए और इंटू 100 इधर भी कर दीजिए. आंसर वुड बी 3% एंड हेयर n इज इक्वल टू 3 एंड दिस इज द आंसर गिवन. यस, यही आंसर दिया हुआ है. ठीक है, मैं सही बोल रहा हूँ, यही आंसर दिया हुआ है, गिवन यही है. ठीक है, और यही सही भी है. ठीक है, बट इसको हम दूसरे तरीके से कर सकते हैं. कैसे आंसर है, बिल्कुल कर सकते हैं, इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं. आप कर सकते हैं, आप इंडिपेंडेंट है करने के लिए. बट आंसर जो मार्क्स लाना है ना, अगर सब्जेक्टिव में क्वेश्चन, सब्जेक्टिव तो आजकल आते हैं नहीं, सब्जेक्टिव पूछा तो दोनों सही आंसर है. लेकिन अगर ऑप्शन में है तो अगर ये अवेलेबल तो ये सही होगा, या अगर ये नहीं है तो उससे चेक करिए, है ना. अगर उससे चेक करेंगे तो क्या आ जाएगा मैं बता देता हूँ आपको. इसको आप देख लीजिए अब. है ना, चलिए. चलिए, अगर वो वाला देखते हैं तो आपको आएगा, इसी को आप अगर लिखेंगे तो लिखेंगे माइनस डी एफ ओवर एफ स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस डी यू ओवर यू स्क्वायर और प्लस माइनस डी वी ओवर वी स्क्वायर. ओके, सो ओके, सो नाउ सी, अगर हम देखा जाए यहाँ पे तो माइनस से माइनस माइनस से माइनस से कैंसिल कर सकते हैं. यहाँ पे क्या है, डी एफ अपॉन एफ आपको ये चाहिए, है ना. तो यहाँ पे अगर एफ से मल्टीप्लाई कर दें तो डी यू कितना है, डी यू हैव गॉट 0.3, है ना. और u कितना है 30 स्क्वायर 900. dv कितना है 0.6 अपॉन v 60 3600. ओके, सो अब आप देखिए. अच्छा, f कितना है, f यू कैन कैलकुलेट फ्रॉम हियर. आपको साइन का ज़्यादा आवश्यकता नहीं है. आई थिंक मिरर अगर नहीं दिया हुआ है फोकल, नहीं तो स्फेरिकल मिरर सीधा है. साइन मत लीजिए, आप मैग्नीट्यूड को कैलकुलेट कर लीजिए. अगर आप मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर लेते हैं तो मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा 1/30 प्लस 1/60. इट इज़ नथिंग बट 180 और ये 60 और ये प्लस 30 काटेंगे तो 1/2 आएगा, 1/20 आएगा. f इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, है ना. तो अगर यहाँ पे 20 सेंटीमीटर रखेंगे तो डी एफ इज इक्वल टू डी एफ ऑन एफ इज इक्वल टू 20 इंटू ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, यहाँ से यहाँ कैंसिल हो गया. ठीक है, एंड इट हैज बिकम प्लस 1 अपॉन ये, है ना. ये कट जाएगा और यहाँ पे 20 मल्टीप्लाइड है, तो काटना हो तो ये भी काट दीजिए, है ना. और 2 से काटना है तो ये भी काट दीजिए, 150 और प्लस 300. ये आ गया आपका. तो डी एफ अपॉन एफ कितना हो जाएगा 300, 150 दूना प्लस 301, 3 अपॉन 100, है ना. 300 1 अपॉन 100, है ना. ये आ गया डी एफ अपॉन एफ. अब आपको परसेंटेज निकालना है तो डी एफ अपॉन एफ इज इंटू 100 और 1 अपॉन 100 इंटू 100. तो आंसर कितना हो गया 1%. ठीक है, तो अब देखिए मैं आपको बताऊं, पहले वाले से कितना आंसर आया n इज इक्वल टू 3, दूसरे वाले से कितना है n इज इक्वल टू 1. अब कहने का मतलब ये है, ये आपको आंसर देख के पता करना है ना. ये आपको आंसर ऑप्शंस में देख के पता करना है कि ऑप्शंस में n इज इक्वल टू 3 है या n इज इक्वल टू 1 है. चलो ठीक है, इफ अगर आंसर में अवेलेबल 3 है तो वो वाला मेथड सही है, इफ आंसर में 1 है तो ये वाला मेथड सही है, दोनों प्रेजेंट है तो ये सही है, सबसे ज्यादा सही ये नीचे वाला है. सीधी बात, ठीक है ना.
तो इतना बात आपको ध्यान रखना पड़ेगा ऐसे प्रॉब्लम्स में। सो यहाँ तक दोस्तों आपका जो बेसिक्स पोर्शन है आपके जो फिजिक्स का बेसिकली क ख ग घ है, जो इनिशियल्स है, यानी कि आप जब सेंटेंस पढ़ते हो तो उसके लिए ABCD पढ़ना बहुत आवश्यक है। तो उसी तरीके से दोस्तों आपको ये फिजिक्स पढ़ने के लिए ये बेसिक चीज़ें पढ़ना बहुत ही आवश्यक है, ठीक है ना। अगर आप इस पे कमांड नहीं किए, मेरे अभी तक के जो लेक्चर थे यूनिट डायमेंशन जो शुरू होकर आज तक जो खत्म हुआ, अगर इस पर कमांड आपका नहीं है तो आप भूल जाइए कि फिजिक्स आपका अच्छा कभी होगा, है ना। जिसमें आपको यूनिट डायमेंशन, एरर, मेजरमेंट, वेक्टर, कैलकुलस, ठीक है। तो ये सारे पोर्शन, ये 4-5 पोर्शन आपके स्ट्रांग होने चाहिए, सुपर स्ट्रांग होने चाहिए, जिसमें फिजिक्स आपको ईजी लगने लगेगा, ठीक है। मैंने आपको जैसा पहले ही बताया कि कैलकुलस को बनाने के लिए आप RA सर्वल बुक ले सकते हैं 12th का, जिसमें डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के कुछ आसान प्रॉब्लम्स अवेलेबल है, जिसको आप प्रैक्टिस करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, है ना। आपका कोई फ्रेंड है तो आप उससे ले लें, खरीद लें मार्केट से, और उसको प्रैक्टिस करें तो फिजिक्स में आपको कभी कैलकुलस में प्रॉब्लम नहीं आएगा। कैलकुलस से आप फ्रेंडली होने चाहिए फिजिक्स पढ़ने के लिए, बिकॉज योर फिजिक्स इज टोटली कैलकुलस बेस्ड फिजिक्स। पहली बात तो ये, ठीक है। दूसरी बात, अब यहाँ से जो शुरू होगा ये आपका, अब जो मतलब आगे जो शुरू, वो असली फिजिक्स शुरू होने वाला है, दैट विल स्टार्ट फ्रॉम काइनेमेटिक्स, ठीक है ना। सो काइनेमेटिक्स में बहुत सारे पोर्शंस हैं, स्टैटिक, डायनेमिक, ये सब बहुत सारे, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ये सारी चीज़ों का स्टडी हम लोग पार्ट बाय पार्ट करेंगे। बट यहाँ तक आपका बिल्कुल स्ट्रांग होना चाहिए, ठीक है। तो 11th के हर स्टूडेंट को ये आवश्यक है यहाँ तक के लिए, है ना। तो तब तक के लिए आप पढ़ाई कीजिए। थैंक यू।